10,000 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे पैदा दुनिया भर में पैदा होने वाले ऐसे तमाम बच्चों में 10% हमारे देश भारत में जन्म लेते हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्चे के इलाज पर लगभग 10 से 20,000 रुपए महीने का खर्च आता है। पिछले 35 सालों से ये खर्च आप सबके सहयोग से पद्मश्री पंकज उधास की अध्यक्षता में काम कर रही संस्था पटू यानी पेरेंट्स एसोसिएशन थैलेसीमिक यूनिट ट्रस्ट सहर्ष उठाता रहा है। एक काम करो यार, किधर गया वो? कहाँ गया? Somebody go, can you take? क्या है? ठीक है? क्या है? नहीं इधर देखिए। इधर देखिए। ये इसमें देखिए इसमें। अरे आपका भी है। ग्रीक भाषा में थैलस यानी महासागर और थैलेसीमिया का अर्थ बनता आपके तो सब चर्चे ही चलते हैं। आपकी मैंने रील देखी है, हम एक्चुअली उधर मसूरी में थे। हंसल वाला एपिसोड दो किया मैं, एक तो 2003 वो आपका देहरादून में प्रोग्राम था। मुझे अगले दिन भोपाल में देहरादून में जो अभी हाँ अभी तो हाँ 11 जुलाई। हाँ ये अपने किरण रिजिजू ने करवाया था। लोग संवर्धन कुछ देर आपको यकीन कीजिए 5-6 बजे का फंक्शन था, 4 बजे उनकी थी और 5 बजे धुआंधार और उनके साथ जो उसमें देखिए सर इधर भी देखिए। बाद में यार इधर हो जाएगा तो सर इधर हम भाग रहे हैं क्या कहीं? नहीं स्क्रीन पर दिए जाते हैं हमारे ये उनका लिया गया। हो गया ना बेटा? क्या उनके तो भाई थैंक यू। पूरे वैसे ही सर्कुलर सीटिंग स्पीकर but you have to get permission from the staff, everybody has to get a NOC from the police. If you look at cervical cancer, Right next there are to three sources that are available wherever you are located. In addition to that, we also have a source of income to a cancer patient or a caregiver. That was member of the family. फिल्म कैमरा में आज So what happened was, Come sit here. I'm just telling you that भट्ट साहब डायरेक्टर थे ना हाँ बड़ा तो बात ये हुई कि फूल सिंह द फादर एंड यू आर सिंगिंग आई एम सिंगिंग तो मैंने रशीद को पीछे मेरा तो रिश्ता उनके साथ जी चलो क्या करना है भाई ट्रैक तो ले लिया महबूब स्टूडियोज में ये दिस प्रॉब्लम आफ्टर 4 o'clock जो है ना वहाँ पर आपको पता नहीं है कि वोल्टेज यूज टू फ्लक्चुएट तो जो ट्रैक होता था एक भी जो सिंपल ट्रैक है वो A440 से A220 हो जाता है हम लोग क्या There's a silent partner. Always on. More than transactions, banking is about trust. Union Bank of India. Banking that is always on with you. Life
Yeah, ma'am. Ma'am, look here. All of it. Yeah. Thank you. More than transactions, banking is about trust. About being there when it matters the most. Union Bank of India. हर वक्त फजाओं में महसूस होने इधर है मैं प्यार गजल की ये मखमली आवाज जो 40 साल से क्या Thanks, Rohini. Good afternoon, ladies and gentlemen, to all our elders present in this room. Like I was telling Alka ji, with so much happening, I don't think I have a speech ready. If I forget to mention anyone, I'm really sorry. But I think Khazana this year is nostalgia. It's about remembering all the people that have been part of Khazana for 25 years. I remember coming to Khazana as a small child. When I was in school, it was like a picnic day for us. We didn't know, it was like, we would come here and it would be like a party for us, where we would meet people and then, jump around, play around, never realizing how big it became, how many people got associated as the journey unfolded. Like Alka ji said, we initially only had 5 artists who we miss now very, very dearly because some of them are not with us anymore. Rajendra Neena Mehta ji, Bhuppi uncle, Mitali ji is here, but I think she should be here. Anup uncle, Talat uncle. That's how it started. Like Talat uncle said, it started over a cup of tea and it all unfolded then. I think he'll throw more light on that. So from that period to it becoming now one of the finest ghazal festivals, I think it's only some sort of major responsibility that we shoulder, something that my father worked so effortlessly and selflessly towards, to make sure Khazana happens year after year, putting his own shows on hold for a month and, just working on the show, the concept, how it should be done, everything should be perfect. He was a perfectionist. And he wanted us to, try and take forward that. But I think in this journey, ever since I came into the picture and we took over, organizing with Dad, a lot of people came along, a lot of, relationships got formed in the way. And everything just became heart. There was no ulterior motive, everything was heart. So I just want to thank each of those people in this process who have, made Khazana reach 25 years, and we hope we can continue for the next 25. Union Bank of India, who believed that we could do this year after year, thank you so much. Trident Hotel, they have undoubtedly been a huge backbone and a support, starting from Sanjeev Malhotra ji to Mr. Bharma to as the years went along. Mr. Mehta, thank you so much. Mr. Prakash, and to the entire team, Deval, Sai, Bezad, Abhishek, thank you so much. The 2 causes that we really are here for, cancer patients and thalassemia. I think Alka ji has already thrown a lot of light on that. But
it feels good to be giving back whatever we can do in our way to the society. In association with YK Sapruji, with Alka ji, Shailaja ji, Aditi, and the entire team at CPA, and our team at Patut, which is now we have formally announced a new chairman, Mr. Adarsh Kumar ji. He's with us here today, Mr. S.K. Agarwal, who's vice chairman, and our team at Patut Iram. We are trying our best to kind of take this forward in terms of helping people. Just to really run it through very, very quickly, with the funds that we have raised this year through Khazana, we have been able to do more than 175 bone marrow transplants of children, which is a short thing of them being thalassemia free. So you all sitting in this room today have been major contributors for these children again being back on their feet and leading a very normal life like all of us. Their families are so grateful because they are from very, very low income groups. So you don't all realize, but you all are contributors in giving life to these children. So we are very, very humbled by this. Apart from that, we've also done, in 2026 alone, we have done more than 500 thalassemia screening test camps. So this is all the work that goes behind doing Khazana, and you all have supported us immensely. We would like to thank all the artists who have been with us year after year, giving so much of their time. Each of these artists do not charge any of their professional fees, they just come to support Khazana. So I think they all deserve a huge round of applause for coming forward, supporting the causes, supporting music, supporting ghazal, and all giving their own time, their own vision, and their own guidance, which is really helped us to shape Khazana. Special thank you to a couple of them. Talat Uncle, thank you so much for coming today. My pleasure. For all your contribution. Anup Uncle unfortunately is not with us here today. He had to urgently go to Raipur for a CM event. But you will see his video later. I think he has stood by me unconditionally. He has in fact sat for days trying to figure how we can generate more funds and how we can, keep this going after that. So I'm really, really grateful to him. And there are 4 more people that I don't think I can leave this stage without thanking, who have shared so much of their wisdom, their guidance, their support, and how, and basically just helping, to make all this happen. Peena's auntie, Vishal ji, Rekha ji, and Sudeep ji. I don't think I can thank you all enough for supporting Khazana, not just on the days of the festival, but year long. I want to even share something so interesting. We do the talent hunt, and Vishalji is not part of the jury, but he still helps us from the background. He gives us his suggestions. They all spend hours listening to new talent, guiding them, supporting them, and bringing them to the stage, which I think is a very, very big thing to do for an artist to, guide the way for the youngsters and, give them a platform. So I thank each of you from the bottom of my heart for doing it, because it means so much. That was one of the visions that Dad had for, Khazana. So I thank all 4 of you deeply for doing this. Thank you so much. You all will see the artist reveal video over here.
But with us today, we also have Anup Soni ji. He has joined us this year. He's been very, very kind to have come forward and said, I want to do this. So I think that was really kind of you, and really, really thankful and very excited actually to have you on board. Nihira, thank you for being with us. Nihira Joshi, you will see her as a special guest artist this year in Khazana. And Tejas and Alina, who we are really looking forward to. He's with us today. He's driven all the way from Pune. Another person I want to mention, he's on his way, Harihar and Uncle. I think he's been a huge backbone too. I mean, we've just called him always saying, Uncle, can you come? Will you be able to come? And he'll be like, yeah, I'll be there. Just tell me the time. So we fondly call him Harry Uncle. So Dad would always say Harry. So we got used to calling him Harry Uncle. So he'll be here any minute. He's on his way. So we thank him too. I would like to thank all our partners. I don't want to make it too long, but we'll thank everyone who's been a part of Khazana, all our sponsors, all our partners. I can see Vasant Bhandari ji, thank you. You've been with Khazana from 25 years. All our sponsors. And each and every partner is not here for anything else but their love to support Khazana. This year also we have support from Isamra. Sanjay Tandon ji is here. Thank you so much for supporting Khazana. And it's very, very kind of you to be here today. It really means a lot to us. Also the Khayyam Trust, which Anup Uncle heads. So we thank all these partners. We thank everybody from the media. There are a lot of very known faces from my childhood who I've seen, who I've just been joking with them that I think you all have seen more of Khazana than I have seen. Naren Kasnuji, Yogesh Pawar, I think Mohammad Wajauddin ji, I think all of them are in the audience. Devarti, I think I saw you too. So thank you to each one of you who have made the time to come here today, everybody from the media. Hangama and Neeraj and Ronak are not here today, they are away to Bangalore. But them and the entire team for so much support. You will see the live stream of the event on both the days from Trident at 7 p.m. So for people all over the world who are going to queue in. And I think this year we have a lot of people attending from out of India, which I think is a huge achievement for Khazana. We have a lot of people attending from South Africa, Australia, Nairobi, London, and in fact, another musician just messaged me, there are some people coming just from the US also for just Khazana, for just that weekend. So I think it's going to be very, very exciting. And last, but not the least, I'd like to thank Fever FM, who has been a huge support, but over and above that, my dearest friend. I don't think she's an RJ for me or she's anything, but she's just a very, very close friend, and she's always been there just a call away. So I thank you for all your support, your guidance, and for all that you help me with when I'm like stuck somewhere. So I thank you so, so much. I think that's it for now. I'm sorry if I've missed anyone. I think Vaibhav Patil of Ginger PR, and I think at Evenco, Anuj and Varda, I don't think could do this without you all. So thank you so much. And just to, I don't want to make it long, but just something that was going on in my mind when, so whenever it's like always been a thing, the minute we enter into Trident, that signature fragrance, that you get of the place, like that is something that reminds me of Dad immediately. Standing over here, like I can literally, it's so surreal because I can just imagine him standing over here and speaking. It's crazy that he managed to do this for so many years, and that also selflessly. I don't think that, meaning it can be said enough of how much he has done. Not to be biased, but he literally used to put his heart and soul in it, because all for him it mattered that the children, the patients of cancer, those were the people that he wanted to do this for. And
I think it's a very huge responsibility, and we are not only taking that responsibility, but I want to say that we are privileged to be holding it, because this is not something that comes to anybody like that. He put everything into it, him, Talat uncle, Anuji, from the first year, and the couple of people that we don't have here today, Bhupi uncle, Rajana Meena Mehta ji, Pina Zanti is not here today, but so this was the basic, and going through the footage for 25 years which we're trying to collate so that we can show you all something on the main day. The pictures, the images, and it brings back so many memories. I was even smaller than Naya, but I think from whatever I have of that memory, like it's extremely strong. This place especially, it brings back all those memories. We are really grateful to each and every one who have joined over the years for us. It's been a great journey. Dad and all of us used to talk about this day, I think practically every couple of days, that we'll do this for the 25th year, we'll do this. So I want to say that it's heartbreaking that he's not here today, but his spirit is here, and he's always going to be here with us. I also want to thank all the artists, especially Rekha ji, Vishal ji, Sudeep ji. I think it takes a lot to put aside any other notions that you have personally and do something more for music overall. And that really needs to be commended, because it is not an easy thing, and to put aside your own opinions about things and think about this first, that is exactly what Dad did. And I want to say that you all have really supported us. Anup uncle, it's not, we cannot go forward without you all. Sudeep ji for doing the medley with us, which takes so much effort and so much looking into. It is not an easy job, and to make sure that every year we do something different, every year we put our tribute to some people, and to be able to justify that, it's not an easy job. All our musicians, it's a great day for all of us. I think it's a very proud moment, because even though we always thought about it, we did not know that how and when we would reach here. So it's a very great moment for us. I want to thank them. I want to thank all our musicians. I want to thank the entire core team, Trident and Union Bank especially. They've been with us through floods. They've been with us through COVID. There's nothing else more to be said. I think what we have planned for the main 2 days is going to be something really special, and it is a great honor to be part of this and to be helping to curate it. I want to still say that I don't think that we could have gone forward without the advice, the help, and all the knowledge that Dad has imparted to us. We keep that first at the helm of whatever we do, and it needs to be said that, I don't know how many times I would say it, but still it needs to be said that he really put everything into it. His suggestions, his adaptations, his vision for the entire process of not only ghazal and talent to be brought forward in youngsters, but also at the same time to be helping these children. It was his dream to have India to be thalassemia free, and we're on the way for that, especially with all the awareness that is going on, so that this thing can be avoided totally. I want to thank everybody from CPA. It's been a great journey, and I think that it needs to be celebrated, and he needs to be celebrated, and that's what we are looking forward to do on those 2 days, remembering them. We are also doing a tribute to Asha ji.
who we lost this year, unfortunately. And I think that pretty much makes up what we stand for, music and a cause together. Thank you, Rohini. If I'm missing anybody, please forgive me. But we are really fortunate, privileged and blessed to be here today. And thank you so much, the press, everybody, for whatever you all have done. And thank you for supporting us and continuing to do so. Thank you so much. Very happy. क्या जरूरत है, आपने सब कह दिया है, फिर भी मेरा फर्ज है, फिर भी आप कुछ कहेंगे। मैं कुछ तो बहुत कुछ कहूँगा, लेकिन बहुत प्यार से जैसे जाऊँ। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं याददाश्त के लिए, और मैं अगर आप इजाज़त दें तो उर्दू हिंदी में बात करूँगा। अंग्रेज़ी तो आती नहीं, मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं, अनपढ़ हूँ मैं आज के दौर में। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका सबका खैर मक़दम करता हूँ, खुश आमदीद। आप लोग आए यहाँ पर, और ये ख़जाना जो है, ये सिर्फ ख़जाना नहीं है, ये एक बहुत ही एक एहसास है मेरे हिसाब से। अब मैं कुछ बच्चियों को तो पता ही है, फिर भी मैं आपको कुछ एक कहानी जो कहते हैं ना, ख़जाना की कहाँ से शुरुआत कैसे हुई, मैं वो बयान करना चाहता हूँ पॉइंट्स में। आज यहाँ पर मैं खड़े रह के एक अजीब सी कैफियत है। वहाँ देख रहा था पंकज की तस्वीर, मैं भी मिस कर रहा था क्योंकि हमारी बड़ी करीबी दोस्ती थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कल ही की बात है, और देखते देखते 25 साल गुजर गए। 25 साल पता नहीं लगा कहाँ चले गए। सफ़र की खूबसूरती मंजिल से ज़्यादा उसके हम सफ़रों में होती है। खजाना भी कुछ ऐसा ही सफ़र है। बेटा सुन, दिस इज फॉर यू गाइस। इसकी शुरुआत कोई बोर्ड रूम में नहीं हुई, कोई बोर्ड मीटिंग में नहीं हुई, किसी बिजनेस प्लान से नहीं हुई, बल्कि एक कप चाय पर हुई। मैं, पंकज भाई, हालांकि मैं प्यार से उन्हें पंकज कहता था, मेरे से बड़े थे 3 साल, बट पंकज भाई अब कहूँगा मैं क्योंकि इट डिजर्व्स दैट। बट पंकज, अनूप और मैं चाय पी रहे थे। आपका जो पिताजी का जो वो है ना स्टडी लेफ्ट साइड, वहाँ बैठ कर हम चाय पी रहे थे। तो मुझे एकदम अचानक पता नहीं क्या कहाँ से दिमाग में ख्याल है कि मैंने कहा यार, वो ख़जाना जो 81 में हुआ था, उसको हम क्यों नहीं शुरू करते हैं। तो एकदम 2 पल के लिए खामोशी हो गई, सब खामोश थे। फिर सबने कहा हाँ क्यों नहीं, लेकिन अब करते तो हैं, लेकिन हर ख्वाब का पहला इम्तिहान क्या होता है? सवाल था वेन्यू कहाँ है, वेन्यू किधर से आएगा। अभी जैसे कि नायब ने बताया कि मेरे एक दोस्त थे संजीव मल्होत्रा, जो इस होटल के जनरल मैनेजर थे और गज़ल और म्यूज़िक के शहदाई थे। वो ही वॉज द लॉबी मैनेजर इन द फर्स्ट खजाना 1981। तो मैंने कहा मैं फ़ोन करता हूँ, लेट्स सी होता है तो ठीक है। तो मैंने लगाया आपके घर से, लैंडलाइन से। मैंने कहा संजीव कैसे हो? ठीक हूँ मैंने कहा संजीव हम बैठे हैं, पंकज भाई, मैं, अनूप, और याद है वो ख़जाना जो किया था 81 में आपके रीगल रूम में? बोले हाँ तुरंत यार, बड़ा मज़ा आया था। तो मैंने कहा क्यों ना ये मज़ा दोहराएं फिर। बोले कैसे? मैंने कहा आप स्पॉन्सर बन जाइए, आप जगह दीजिए रीगल रूम की, तो कोशिश करेंगे हम लोग सब। तो बोले हाँ। 2 मिनट के लिए खामोश था वो, उसके बाद कहने कहा डन, आ जाओ मेरे पास। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, पंकज भाई आएंगे और ही विल डू ऑल द वर्क, हम लोग पीछे हैं सब। पंकज गए और ख़जाना के लिए ओबरॉय ने रीगल रूम, मतलब एक ऐसे टोकन अमाउंट में विथ अ डिनर फॉर 300 पीपल दे दिया। वेन्यू हो गया तैयार। फिर आया साल, ये 2000 की बातें रहे। दिस वॉज द ईयर 2000 एंड 2001 तो पहला ख़जाना हुआ जिसमें आपकी दोस्त रक्षंदा
ने होस्ट किया था, मेरे पास अभी तक वीडियो है। उस मंच पर हम सब सिर्फ फनकार नहीं थे, एक मकसद के मुसाफिर थे। राजेंद्र भाई, राजेंद्र नीना मेहता है, भूपिंदर मिताली जी बैठी अभी आई हैं, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन भाई, पीनाज, आई थिंक पीनाज है शिखा, ओके पीनाज, अनूप भाई, ऑफ कोर्स पंकज तो था ही, पंकज वाज द ड्राइविंग फोर्स लेटर ऑन, और मैं। देखिए हम सब ने बिना किसी मतलब सोचे नहीं, मुआवजा समझते हैं आप लोग कि पैसा में रेम्युनरेशन नहीं, क्योंकि पैसा मकसद नहीं था, गज़ल की रिवायत को ज़िंदा रखना मकसद था। विशाल, ये बात थी, गज़ल की रिवायत को ज़िंदा रखना मकसद था। उस सफ़र को अगर एक शेर में मैं समेट लूँ तो मजरू साहब का वो शेर याद आता है कि क्या शेर था, मशहूर है, याद है आपको? मैं अकेला ही चला था तब जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। वो कारवां बनकर आज यहाँ पहुँचा है। चलिए, और ख़जाना वाकई एक नायाब ख़जाना है। ये खड़ी है नायाब, ये ख़जाना है सामने। आप आ जाए, बेटा बोल रहा हूँ इसलिए बोलिए। अच्छा शर्म मत, कोई बात नहीं। ये नायाब ख़जाना है, ख़जाना का नायाब ये है। और ये फेस्टिवल किसी का नहीं था, सिर्फ मेरा नहीं था, उनका नहीं। ये पंकज भी इसको ट्रीट करते थे जैसा कि एक विरासत, एक ट्रस्ट है। ये उन सब का था जिन्होंने इसमें अपनी मेहनत, अपना पसीना और अपनी नेक नियति शामिल की। आज हमारे साथ कुछ अनमोल साथी नहीं रहे, साथ नहीं रहे, जैसा कि पंकज भाई छोड़कर चले गए, राजेंद्र मेहता साहब, नीना मेहता जी, भूपिंदर भाई। लेकिन फनकार जो है, मेरा कहना है कि फनकार कभी मरता नहीं। फनकार जैसे कि मेहदी साहब को मैंने कहा था कि भाई आप इस दुनिया से जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपका फन ता क़यामत जिंदा रहेगा। फन नहीं मरता, फन, उनकी आवाज़, उनकी यादें, उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। तो आइए हम सब मिलकर उन तमाम अजीज़ों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। खिराज अक़ीदत मतलब ट्रिब्यूट। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तो गज़ल तो उर्दू में ही होगी, जाहिर बात है। कहाँ बैठे भी हैं आप? किधर? इंडियन एक्सप्रेस। आप वहाँ, मैं जानता हूँ, आपकी आवाज़ से पहचान लिया मैं। आप पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, इंडियन एक्सप्रेस में थे, आप अभी भी हैं आप? अच्छा, माशाल्लाह, खुश रहिए। और आखिर में मेरी एक दुआ है, खजाना यूं ही आबाद रहे, यूं ही गज़ल की खुशबू फैलाता रहे। और अब नई नस्ल, मतलब न्यू जनरेशन, इसके लिए एक अमानत है जो उन्हें अपने कंधों पर उठाए आगे बढ़ाना है, जैसे आप लोग कर रहे हैं। और नए आर्टिस्ट की बात भी कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि नायाब और रेवा और उनके साथ उनकी पूरी टीम इसी मोहब्बत और ईमानदारी के साथ इस सफ़र को और भी बुलंदियों तक ले जाएंगे। ये मेरी दुआ है और मुझे यकीन भी है। और आखिर में सिर्फ 4 चीज़ें कहना चाहूँगा, ज़रा प्लीज़ गौर फरमाइएगा कि ख़जाना सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है। ख़जाना सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक एहसास है, एक रिवायत है, एक अमानत है, और सबसे बढ़कर ये हम सब की मोहब्बत का नाम है। शुक्रिया। ठीक कह दिया मैं? जॉब मिल जाएगा मुझे? Don't thank me. This is for me something which is my home. And let me tell you something. मैं ये सब बातें तो छोड़िए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। शेयर लिटिल टिडबिट। अनूप भाई की बात करना थे आप। अनूप, देखिए कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अनूप एक ऐसे शख्स है, ही नेवर मिस्ड ऑन खजाना। मुझे याद है कुछ 8-10 साल पहले की बात है, ही वॉज इन ऑस्ट्रेलिया
खजाना शुरू हो गया था, उनकी ओपनिंग थी और वो फ्लाइट में थे। फ्लाइट से सीधा उतरे एयरपोर्ट से सीधा स्टेज पर आके शुरू कर दिया। मैंने बोला कैसे करते हो तुम यार, जेट लैग नहीं होता तुम्हें? नहीं। इस बार भी मुझे रिवील करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग द कमिटमेंट। पिछले साल हम दोनों का शो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, हमने पूरा टूर किया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी पर। तो कुछ प्रोमोटर्स यूएस से आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपका और अनूप जी का फ्रेंड्स फॉर एवर, पंकज तो थे नहीं लेकिन वी गोइंग टू पे ट्रिब्यूट, हम आपका एक पूरा टूर प्लान कर रहे हैं यूएस का। और वो बात चल गई थी, 10 कॉन्सर्ट्स का टूर था यही जुलाई में। तो अनूप ने कहा भाई जुलाई में तो खजाना रहता है, कैसे जाएंगे हम लोग? तो मैंने कहा ये तो बात सही है। तो फिर उनसे प्रोमोटर से कहा कि भाई एक काम करो, आप अगस्त या सितंबर में कर लो। तो उन्होंने कहा भाई अगस्त सितंबर में मुमकिन नहीं है, क्योंकि वी आर डूइंग, कोई एमी वेयर कोई सिंगर है पंजाबी, फिर सितंबर में दे आर डूइंग सोनू। तो बोले अभी अगले साल ही करेंगे ना, ठीक है अगले साल करेंगे। तो मेरा मकसद कहने का है कि ये ख़जाना जो है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज़ नॉट अबाउट, इट्स अ कॉज। जैसा इन्होंने बताया कि इतने बच्चों की जिंदगियों में ये शामिल होकर उनकी CPA, मेरी वाइफ हैज़ बीन विद योर मदर रेखा जी लॉन्ग विद द पेंटिंग्स, बहुत मतलब उसने डोनेट किया है, पेंटिंग्स है उनके आपने। तो ये बेसिकली ये जो है, अगर एक बच्चे की भी ज़िंदगी में सुधार आता है तो इसको कैसे हम पैसे से तोड़ सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं। तो मेरी दुआएं हैं कि ये चलता रहे खजाना और बढ़ता रहे। और ये आपके मंच में कहना चाहूँगा, हालांकि मैं इस खजाना में नहीं हूँ, जानबूझकर नहीं हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव space to newcomers, let them come and use that time and showcase their talent, because a khazana is also a platform for the new singers to showcase their talent. उनके लिए एक मंच है जिससे वो उनका मुस्तकबिल बन सकता है। तो लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने आज तुमसे कहा या कल रात में कहा, कभी भी आपको किसी चीज़ की भी एडवाइस अगर चाहिए, अगर मैं इस लायक हूँ तो आई एम देयर in the background whenever, always will be. Okay, lots of love and thank you very much. Thank you. Anup ji is not with us at this point, but very kind of him to send us a little video message. Could we actually play that message? Thank you. ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद नायाब और नायाब की पूरी टीम को देता हूँ। आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ इस प्रेस मीट में, नहीं तो मैं हर साल होता हूँ, लेकिन आज मुझे छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम में जाना पड़ रहा है, उसके लिए सुबह फ्लाइट थी, मैं चला गया हूँ। लेकिन आप सब मज़े से अटेंड कीजिए ये प्रेस मीट, इसके बारे में खूब अच्छी तरह लिखिए और उस मकसद को लिखिए जिस मकसद को लेकर हम लोग खजाना लेकर आते हैं हर साल आपके सामने। तो ये 25वां साल खजाना का सबको मुबारक हो। That was the wonderful energy. Thank you for being. मुश्किल बहुत है क्योंकि 25 साल खजाना करोगी याद तो हर बात याद आएगी। आपको एक बात बताऊं, भूपेंद्र जी जैसे गायक थे, वो एक ही लिव लाइक किंग। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आने से पहले मेरे से इतनी लड़ाई होती थी। हिज फेवरेट कलर यूज्ड टू बी रेड और द कलर आई एम वेयरिंग इट। मैं हमेशा ब्लू ब्राउन इस्त्री करके रखती थी, लेकिन वो घुमा फिर मेरा रेड शर्ट कहाँ है। नाराज़ होते थे, बैठ जाते थे, मैं बाद में आऊँगा, बच्चों की तरह। खैर फैजा यहाँ बैठी है, मैं समझ सकती हूँ मेरे जिस्म एक रूह का हिस्सा मेरे साथ नहीं है, but I am thankful to my son Amandeep who is sitting
He is my support. रेखा, विशाल जी, तलत जी, सुदीप, बहुत सारे लोग बैठे हैं. Thank you Naya. She every year she used to push me, auntie you have to come. मैंने कहा मैं श्रद्धांजलि दी नहीं, वो गए ही नहीं तो मैं कैसे दूं. लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो जॉनर है गज़ल को ज़िंदा रखना, इतने सारे जॉनर बीच में आते गए, बहुत मुश्किल था. और ये ख़जाना जो ये तीनों दोस्तों ने मिलकर जो सोचा है, ये गज़ल के लिए, आने वाले सिंगर्स के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए. और मैं नायाब, रिवा, क्योंकि सबको लगता है कि स्टेज पे जो गाते हैं, इट इज़ नॉट ओनली द सिंगर्स, इट्स बिहाइंड द सीन्स, द टेक्नीशियन, इवन द सुनने वाले बहुत लोग नहीं रहे. आई एम मिसिंग रेखा जी ऑल्सो टुडे. लेकिन ये जिंदा रहना चाहिए कि आओ ऐसे मोहब्बत करें, मर भी जाएं तो जिंदा रहें. इसको जिंदा रखिए. मेरा आशीर्वाद नायाब, रिवा, फरीदा, सब लोग और जितने नए सिंगर्स हैं, बच्चे गा रहे हैं. और पता है एक बात बोलूँगी, उस वक्त जितने मेल सिंगर्स, ये मेल फीमेल का करना नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त मैं, पीनाज और नीना जी और बाकी ऑल द मेल सिंगर्स, यू नो. तो लेकिन अभी मैं जब देखती हूँ, ऑल लॉट ऑफ फीमेल singers are singing and performing. I'll be attending, I'll be coming this year both the days, and it's a privilege. It's a privilege. Thank you all of you. नहीं, आपको हट तो नहीं सकते, आपको आना ही पड़ेगा. ऐसे थोड़ी है, शुरू करने वाले थोड़ी जा सकते हैं. बिल्कुल उनको चांस मिलेगा. मैं क्या करूँगा, आप एक ही गज़ल गाइए, लेकिन आना पड़ेगा. ये खज़ाना आपने कहा, हाँ अभी हम झगड़ा नहीं करते. ख़जाना शुरू किया है कुछ और पर्पस से. इट इज़ बिकॉज ऑफ ए कॉज. जो यहाँ पे सपुर साहब बैठे हैं, सब लोग हैं. आप छोड़ के जाने वाले आप कौन होते हैं? मैं कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो आया हूँ, बैठा. आप हाँ बैठे हैं, आप 24-25 भी आ रहे हैं. कैसे सुकून पाऊँ, आप गाएंगे. हाँ, ये आपके हाथ में नहीं है अभी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ सुना तुझे सुनने के बाद. ये जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया. जी आदाब. वक्त 25 साल, और मुझे कभी कभी सोच के लगता है उस वक्त सब लोग अपने पीक पे थे जब ये ख़जाना शुरू हुआ होगा, और सबका एक साथ आना और इस ऐसे एक सवाब के काम को शुरू करना. और तो मुझे कभी कभी लगता है, मैं तलत जी से पूछना चाहता हूँ कि जो चाय की कप में चाय ही थी ना, चाय थी, चाय, दूध और शक्कर. क्योंकि उस ज़माने में शक्कर पीना वाजिब था, आजकल नहीं है. जी जी हाँ, नहीं पर अंगूर भी पी सकते थे आप ऐसी. तो ये एक्चुअली 25 साल ये का ये वक्त, क्योंकि हमने तो देखा है उस वक्त हम लोग सुना करते थे आप सबको, और हम लोग कॉलेज में थे जब बीमित अली जी ने आपकी गज़ल बोली या पंकज जी का सारे प्रोग्राम्स हम लोग अटेंड करते थे. इट यूज्ड टू बी लाइक एक रॉक स्टार की तरह आप लोग हुआ करते थे. और गज़ल बड़ी कमाल का था कि उस वक्त घूम के वापस आई थी, क्योंकि फिल्म म्यूज़िक जब ख़राब होने लगता था तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक ऊपर आता था. और हमें याद है कि जब पहली बार जगजीत साहब का वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, वो दैट बिकेम लाइक एन एंथम. देन पंकज जी का दीवारों से मिलकर रोना, कैसे सुकून पाऊँ. तो हम लोग तो ये सोच के कि उस वक्त ये एक चीज़ शुरू हुई और ये अभी तक कंटिन्यू कर रही है. आई नो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हम लोगों ने तो स्पेशली मैंने तो बहुत बाद में ज्वाइन किया है.
पर ये वक्त का जो एहसास है, जो कि अजीब सा उसकी अपनी चाल की एक अलग रंग होता है। जब आप दुखी होते हैं तो उसकी चाल बहुत धीमी हो जाती है, और जब आप खुश होते हैं तो वो इतनी तेज़ी से निकलता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। सो ये और पंकज जी का जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक उनकी जो लीडरशिप थी और जो उनका जो जैसे तलत भाई बोल रहे थे कि एहसास, एक्चुअली वो एहसास का जो बीज था वो पंकज उदास थे। वो बीज था जो फट के ये पूरा खजाना बना है। सो उन्होंने ये जो कैंसर पेशेंट्स के लिए किया, और ये एक्चुअली ये किसी और पर्पस से हो नहीं सकता कि अगर आप दिल से इसको एहसास को फील ना करें। और हमेशा जब भी ख़जाना आता है, ख़जाने का वक्त आता है, तो बहुत अच्छा हुआ आपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया अपना। अगर आप इजाज़त दें, जी जी, एक शेर ऐसे ही पढ़ दूँ? जी जी प्लीज़। क्योंकि आपने ऐसी बातें छेड़ी हैं तो मैं इनफॉर्मली कर रहा हूँ। जी। एक तेरा हिजर जो बालों में सफ़ेदी लाया, एक तेरा हिजर जो बालों में सफ़ेदी लाया, और एक तेरा इश्क जो सीने में जमा रहता है। ये इश्क की बात है, नहीं और कुछ। जी 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 जी। आपको इश्क हो गया है क्या? आपको कई बार हुआ है। इश्क हो गया है क्या? देखिए जर्द बढ़ते जा रहे हैं, पर आप पढ़ नहीं रहे हैं जर्द। हाँ जी जी। तो आई थिंक तुम अब हमको लोगों को थैंक्स करना बंद करो, क्योंकि हमें अब अपनी फैमिली का हिस्सा मानो। असली काम आप लोग करते हैं, हम लोग तो साथ में रहते हैं इसमें। और ख़जाना अल्लाह जी शेर एक, मैंने संदूक़े दर्द खोला था, मैंने संदूक़े दर्द खोला था, एक पुरानी खुशी सी हाथ आई। ये है ख़जाना। मुझे तो लगता है कि हमारे इवेंट की शुरुआत इसी के साथ हो गई है। रेखा जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप ही यहाँ पर हमारे लिए कुछ शब्द कहें। थैंक यू। और सब कुछ कहा गया है, वो सब मेरे भी एहसास हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है। ये मैं 2015 से जुड़ गई ख़जाना से, थैंक्स टू सुदीप एंड नायाब एंड ऑफ कोर्स पंकज जी से मैं हमेशा कहती हूँ कि मतलब गाना और अदायगी वो सब अलग बात है, लेकिन ह्यूमिलिटी, छोटों से भी कैसे अदब से बात करनी, उन्हें कितना प्यार से समेटना है, संभालना है, अच्छाई बुराई कमियां खूबियों के साथ। मुझे लगता है मैंने वो ज़्यादा सीखा है उनसे और वही प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन जैसे तलत जी ने कहा कि ख़जाना एहसास, रवायत, अमानत, मोहब्बत, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि ये जो एक मुहिम शुरू किया गया 2001 में, उसकी कड़ी में मैं भी एक कड़ी हूँ। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, और हम भी किसी के लिए उस तरह की इंस्पिरेशन बन सकें, पंकज जी की तरह, तलत जी, अनूप जी की तरह, मिताली जी, भूपी जी, राजेंद्र मेहता, नीना मेहता जी, राजकुमार रिजवी साहब, और भी बहुत कलाकार। सो हम उस तरह की एक इंस्पिरेशन बनेंगे तो बहुत लगेगा कि हाँ कुछ किया है। इनडायरेक्टली हम डेफिनेटली वी आर पार्ट ऑफ दिस नोबल कॉज। It's the best way to give back what we have received and what we are receiving. So, and I'm grateful to Farida ji, Nayab, Reva, and lots of love. मैं जितनी तारीफ़ करूँ इनकी कम है। अनुज, वर्दा, वैभव इज़ अ साइलेंट वॉरियर मैं कहूँगी। आप सबको यहाँ लेके आते हैं, इकट्ठा करते हैं, और हंगामा और पिनाज जी, हम जब टैलेंट हंट करते हैं बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा लगता है। इस बार और ख़ूबसूरत और बहुत अच्छे कलाकार हैं जो यंग, उन्हें देखकर लगता है कि
मैं तो उस उम्र में उस तरह से उतना कॉन्फिडेंटली गाने का सोच भी नहीं सकती थी. सो दिस इज़ द खजाना एंड दिस इज़ आ खजाना, एंड सो वेलकम एंड लेट्स सेलिब्रेट. थैंक यू. सुदीप जी प्लीज. नमस्कार. सब कुछ ऑलरेडी कह चुके हैं, लेकिन ये साल मेरे लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. 25वां साल है और जैसे ये 3 दोस्त थे जिन्होंने ये ख़जाना शुरू किया, और खुशी की बात यह है कि इस साल भी ख़जाना में हम 3 दोस्त हैं जो यूनिवर्सिटी एक साथ हम लोग जाते थे, कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और आज एक साथ ख़जाना में भी हैं. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस, बिकॉज हम लोग, जैसे विशाल कह रहा था, कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे तो आप सब हमारे रॉक स्टार हुआ करते थे और आप लोगों को ही सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं. इसीलिए इस बार ये ख़जाना के मेडली में ऑल्दो आशा जी को ट्रिब्यूट जा रहा है, दैट इज़ द ऑफिशियल ट्रिब्यूट, बट वी ऑल्सो थॉट व्हाई नॉट सेलिब्रेट ऑल द सिंगर्स, ऑल द लेजेंडरी गज़ल्स जिसकी वजह से ख़जाना ख़जाना है. ख़जाना है तो कैसे सुकून पाँव की वजह से है. ख़जाना है तो ताजमहल में आ जाना. ख़जाना है तो दिल ढूंढता है, और कितनी अच्छी अच्छी गज़लें हैं. दीवारों से मिल के रोना, चाँद अंगड़ाइयाँ ले रहा है. सो दिस ईयर वी आर, आई वोंट से इट अ ट्रिब्यूट, but we are going to celebrate these singers through their ghazals. और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं ई फ्लैट में आपके लिए कोई ऐसे सुकून पाँव का तैयार रखूँगा, आप बस आ जाइएगा. बेटा मेरा प्रॉब्लम ये है, वो मैं सबके सामने शेयर कर रहा हूँ. मैं ऐसे बैठ नहीं सकता 3 महीने के लिए. अब मेडिकली पॉसिबल. अब जैसे बैठे हैं वैसे तो बैठ सकते हैं, बस हम लोग सब वैसे ही बैठ रहे हैं. आप आ जाइए. आप एक गज़ल आपका गाना बड़ा ज़रूरी है. एब्सोल्युटली राइट. किसी और से गवाओ सुनता हूँ ना. हम भी गाएंगे, आप भी गाइए ना. चलिए बात करते हैं. आएंगे आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल. यू शुड कम बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड I will always be part of this. Yes. Never think that I was. You use the past tense. I'm saying I will be. Of course you are part of the family and it will be a pleasure for us. और ख़जाना में इस बारी बहुत नए नए चीज़ें हैं, आप लोग सब एंजॉय करेंगे. एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक्स टू नायाब एंड इवन कंपनी, एवरीवन. थैंक यू सो मच. A new joinee, but we're so excited because this is the first time you'll actually take stage at the Khazana stage. A much loved face, voice and talent for all of us in this country for so many years. Anup Soni, it's such a pleasure to have you as part of the Khazana family. Welcome to Khazana, and what a beautiful year to be part of it, the 25th year. Love to hear. नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून. मैं क्या कहूँ, मतलब कभी सोचा नहीं था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हॉस्टल में टेप रिकॉर्डर पर पंकज जी की गज़लें सुनते सुनते यहाँ आने का भी मौका मिल जाएगा. बहुत देर से जुड़ा हूँ, 25वें साल में जुड़ा हूँ, बट कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए. तो 25वें साल में जुड़ा हूँ तो 50th तक तो जाऊँगा ही शायद. और थैंक यू सो मच नायाब, रेवा एंड फरीदा जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस सच अ ह्यूज प्रेस्टिजियस फेस्टिवल. तो मैं ये कहूँगा कि मेरा तो सिर्फ ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ ग्रेट लेजेंड्स की कंपनी में, एंड आई होप कि मैं हर साल यहाँ आता हूँ. थैंक यू सो मच. लेफ्ट साइड क्लियर प्लीज. और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे सर मेरे पास क्लियर नीचे होता. ओ प्रतिमेश भाई, प्रशांत भाई डाउन हो ना थोड़ा. लेफ्ट साइड क्लियर प्लीज. हो गया क्या? थांबा थांबा. हो गया तो बोल देना ना. थैंक यू.
मोबाइल जरा निकाल दे। थैंक यू। सर खजाना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितना स्पेशल है आपके लिए? अरे भाई, ख़जाना तो हमारा ही ख़जाना है, हमने तो इसकी शुरुआत की थी। और पंकज, मैं, अनूप, और ये 25 साल में तो बड़ी खुशी तो होती है कि बच्चा जब 25 साल का जवान हो जाता है। और हम तो दुआ करते हैं कि 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, जब तक चलता रहे, खुश रहे और आबाद रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 25th ईयर में ख़जाना का हिस्सा बनने का मौका मिला। और इतने सालों से एक दो बार इस फेस्टिवल को अटेंड भी किया, लेकिन लगातार मौका नहीं मिल पाया। और इस बार मौका मिला है टू बी होस्ट ऑफ ख़जाना, वन ऑफ द होस्ट विद रक्षंदा। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं ऐसे ही हर साल आता रहूं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनता रहूं होस्ट करके। ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये मेरा प्रिविलेज है, मुझे मौका मिला उनको सुनने का भी और स्टेज पर उनको इनवाइट करने का। सी गज़ल एक ऐसी चीज़ है, लाइव आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी आ जाए उसको पीछे नहीं छोड़ सकती। हम कहते हैं कि AI जो है वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन लाइव आर्ट को वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए गज़ल हमेशा ताउम्र ज़िंदा रहेगी, जब तक है तब तक रहेगी। इसी देखिए, सोशल मीडिया ख़जाना जैसा फेस्टिवल अगर 25 साल पूरे कर रहा है तो ये अपने आप में एक साइन है कि गज़ल आज भी ज़िंदा है। उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा संगीत होता है, अच्छा म्यूज़िक होता है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। बहुत सारी हैं यार, मतलब पंकज जी की भी हैं, जगजीत साहब की भी हैं, भूपेंद्र जी की भी हैं, बहुत सारे यार। मतलब मैं तो उस एरा में पैदा हुआ हूँ जो गज़ल अपने पीक पर थी, तो मैंने तो बहुतों को सुना है। और अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि 24 को जब मैं होस्ट करूँगा तो साथ साथ होस्ट करने के बाद जब मैं किसी लेजेंडरी सिंगर को इनवाइट करूँगा, और उसके अलावा नए सिंगर्स बहुत हैं, नए गज़ल सिंगर्स बहुत हैं, तो विंग्स में खड़े होकर उनको सुनने का भी मौका मिलेगा। अपकमिंग ये है कि अगस्त में मेरी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है तलाश। उसके बाद सितंबर में एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है वन। तो ये दो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो जहां मुझे लोग देख पाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास, थैंक यू। देखिए, ये ख़जाना जो है 25 साल से चल रहा है, दिस इज़ 25th ईयर। हमारे यादें हैं इस 25 साल के। हम पंकज भाई को बहुत मिस कर रहे हैं और इस ईयर स्पेशल है, हम सभी है यहाँ। और मैं ज़रूर जानता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ हाउसफुल शो, और जो श्रोताएँ 25 साल से आ रहे हैं वो आएंगे, कुछ बहुत सारे नए लोग आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो सारे जो ट्रेजर्स हैं गज़लों में वो पेश करें आपके साथ। गज़ल को आगे रखने के लिए नहीं, आगे तो है गज़ल, क्योंकि गज़ल जो है वो प्यार की बातें हैं, कॉन्वर्सेशन है, और ये ज़रूरी है। जब तक इंसान रहते हैं तो कॉन्वर्सेशन तो करते हैं, गुफ्तगू तो चलता ही रहता है, और गज़ल जो है ये कमाल का एक माध्यम है। वो कनेक्टेड हैं क्योंकि वो गज़ल की भाषा जो है या जो बातें करते हैं उसमें गज़ल की भाषा है। तो कुछ वो जो अभी 15 साल है कि 20 साल हैं, वो 5 साल में वो गज़ल की तरफ मुड़ेंगे वो।
मुड़ना ही है उनको। पंकज सर के बिना कितना मुश्किल था ये सब, पंकज सर के बिना कितना मुश्किल था ये सब, कितना मिस करते, कितना मिस करते सर पंकज सर को। पंकज भाई को भाई क्या कहें, अब भाई है, दोस्त हैं, बढ़िया आर्टिस्ट हैं और इतना बढ़िया काम किया उन्होंने। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग और बहुत ही मिस करते हैं। और मेरे ख्याल से उस दोस्ती के कारण और उनका जो ये प्रिंसिपल, ये जो काम उन्होंने लिया है, इसलिए हम सब यहाँ हैं उनका प्यार से। जिस तरह उनकी बेटी ने अभी टेक ओवर किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, उनके जो फैमिली ने टेक ओवर किया है और इतने मतलब परिश्रम कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग। थैंक यू। सामने ही है। जी, oh, I am very good. बहुत ही खूबसूरत बात है कि ये एक इतना खूबसूरत काम 25 साल से चल रहा है और ये लगता है कि इसकी कोई अंत नहीं होगा और ये चलता रहेगा, क्योंकि गज़ल के लिए बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स हैं और जिसमें ख़जाना एक है, जिसे ख़जाना ने गज़ल को ज़िंदा रखा है। सर पंकज जी को कितना मिस करते हैं आप इस सफ़र में? मतलब ख़जाना का सिनोनिम है, पंकज जी पर्यायवाची हैं, तो ऑब्वियसली पंकज जी अब नहीं हैं तो बहुत उन्हें मिस करते हैं, पर इसीलिए हम लोग उनको उसका दुख मनाने से ज़्यादा हम उनको सेलिब्रेट करते हैं कि पंकज जी यहाँ पे नहीं हैं पर वो स्पिरिट में हमारे साथ है, एहसास में हमारे साथ है। गज़ल आपके लिए कितना स्पेशल है? जिस तरह आप हर जॉनर में हम गाना गाते हैं, गज़ल के लिए आप क्या कहेंगे? गज़ल ना वो है जैसे आपका एक ज़िंदगी में आप ABCD जब होती है ना तो सारी ज़िंदगी में आप पढ़ाई उससे करते हैं ना, तो आर्टिस्ट के लिए गज़ल वो है कि उसके बिना उसकी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकती, उसे समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। कर तो नहीं जेनजी बेचारे कनेक्ट इतने बढ़िया कि मैंने सिक्के फेंके उस पर दूर दूर से करते हैं, कितने जेनजी तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बल्कि वो ज़्यादा समझ रहे हैं। उन्होंने छोटे छोटे एक गिटार के साथ गाने वाले लोगों को, वो क्या नाम है, प्रदीप कुहाड़, ओशो जैन, ये सब लोग एक एक गिटार लेके गाते हैं, उनका जो फील करते हैं वो गाते हैं। अभी क्या एक्सपीरियंस क्या मतलब, ठीक तो शेयर करते हैं तो अच्छा, पहले उनको देखा करते थे स्टेज के ऊपर, अब उनके साथ रहते हैं तो थोड़ा सरियल होता है कि जिनको देखते थे, जिनकी तमन्ना करते थे कि हम कभी ऐसे स्टेज पे जाएं, उनके साथ होते हैं तो अच्छी बात है। लाइट चली गई, हो गया बात। ओके, थैंक यू। I think it's a very proud and a very honorable moment for us that this festival has reached 25 years being a Ghazal festival, and as we are doing it for two very very noble causes, cancer and thalassemia children. So I think it's a great milestone achievement for us. Without your father, you take over this. What do you say? I think all three of us, are trying to keep his vision, to keep his, his music, his entire legacy of, what he had planned for Khazana forward, with trying to get more younger artists to this platform with the maestros, obviously, and also promoting, this platform for the genre of ghazals. And I think also for both the charities. So it's difficult without him. I won't say it's easy, because we miss him every minute, and we remember and we try and follow all the things that he has taught us in so many years, as to wherever we are stuck, we think what he would do to move on. So we try and follow those things, and we are trying to keep the legacy going.
What would you like to add, ma'am? I have nothing to say. We are happy that we are in the 25th year, but we miss Pankaj a lot. How do you see your daughters are doing so well in this? Well, they've learned from their father, so that is expected. And they want to keep his legacy alive, so they are carrying on with it. Nothing, it's a very proud moment for us. We've spoken about this moment for so many years. We used to always talk about it that when we reach the 25th year, we'll do this, we'll do that. So we have kept some of his ideas alive and added some of our own, and we are very happy to be part of this, and we are very privileged to be part of this for helping the two main causes and at the same time helping Ghazal in the forefront as a genre. So Maybe seeing you very emotional little bit there. What do you say for that? nothing, because I think the meaning of Khazana is pretty much synonymous with my father. So Khazana was him, and he was the one who brought everyone together. So of course it's definitely an emotional thing for us, and we are very proud that we have reached here today, and we hope that we can continue to do it for many more years. Any milestones? Milestones? This is I think one of the biggest milestones, because to reach 25 years with Ghazal as a genre which is not in the mainstream, either film music, is a very big thing, because he wanted to keep it alive not only with the maestros but also with the newer, younger talent. And this time, because of Artist Allowed Hungama Talent Hunt, this is our 9th edition this year, and we had got more than 600 entries this time, which have been judged, and the winners of that will be performing on the main 2 days of Khazana as well. So basically keeping Ghazal at the forefront and helping the two main causes, that is thalassemia and cancer. That is what his vision was, and we are trying to continue that only. How do you see, ma'am, this milestone? I think, like she said, I share the same thoughts. I think it's, like we say, I think it's a very big milestone for the genre of ghazals. I feel for it to be watched across the world through Hungama and talent, through Hungama and Artist Allowed, we are going to be showing this across the world. I think it's and people knowing that Khazana is happening, people are traveling from all over the world to watch Khazana here live. I think it's a milestone in itself, and I think it will continue to live on forever. Experiencing with the legends, with sharing your stage, tell us about something. So I think with Dad, Anup ji and Talat ji have had a huge contribution in starting the festival, and even today Anup uncle is very, very actively involved in taking forward what Dad left, with also Talat ji, and so many people have joined the movement of with Vishal Bhardwaj ji, Rekha Bhardwaj ji, Sudeep Banerjee. Also we think of our people who are not there with us now, but they have had so much contribution, like Bhupinder Singh ji, Rajendra Neena Mehta ji. Also today with us was present Mitali Singh ji and Peenaz Masani, who is not here today, but they are all legends who have contributed in this entire event, in this entire legacy of 25 years, and their contribution is huge. And I think all of them have joined hands with more people to come in every single year. And this year we even have Sonu Nigam ji, we have Javed Ali ji. Also Hariharan uncle has been a huge part of Khazana since its inception. So I think the Khazana is here, all the legends have been in the process of making this so big. So I think we are just very indebted and grateful to all of them. How do you see, ma'am, this kind of support you have taken? I think they've said it all. Now what can I say? Thank you so much. Thank you so much. Thank you.